All right, starting off with Cambridge IGCSE 062042, October number 2024. The time for this paper is 1 hour, 15 minutes. We'll start with the paper right away. Looking at question number one, the formula of molecules A to I are shown in the table 1.1. We have different molecules and their formulas listed from A to I. They are saying which of the molecules A to I is an element with a triple bond. So the element with a triple bond is going to be nitrogen, as nitrogen, we all know, is in group number 5. Now, group number 5 means that it has 3 electrons in its outermost shell, 5 electrons in its outermost shell, which means it needs 3 more. And where is it going to get 3 more electrons? When it's going to share 3 electrons with another nitrogen, and that will form a triple bond. So we have to tell which element. So it's going to be Gn2. It is a product of photosynthesis. We all know what is photosynthesis. When carbon dioxide reacts with water to produce oxygen and glucose. So it's going to be H. It's also a photochemical reaction. It is used as a fuel. So which one will be used as a fuel? Alcohols. Other than that, if we see all the other options, they don't fit in the description. So alcohols are the ones that is also used as fuel. It turns lime water milky. Carbon dioxide is a gas that turns the lime water milky. So the answer is going to be D. It undergoes substitution reaction with alkanes. Now, what is substitution reaction? Alkanes may one of the hydrogen atom is substituted by something. So what is that going to be? That is going to be chlorine or any other halogen. Halogens are the ones that participate in substitution reaction. So the halogen we are given over here is Cl2. So E undergoes substitution reaction with alkanes to form halogen alkanes. It is a colorless liquid at room temperature and pressure. Colorless, colorless और liquid भी है. All of these are gases. This is also gases. Only one of them is liquid and what? हाँ बाकी सब gases है. Ethene is a gas, carbon monoxide gas, carbon dioxide gas, chlorine gas, nitrogen dioxide gas, sulfur dioxide. सारी gases है बल्कि तो सिर्फ alcohol जो है that is a liquid and it is also colorless at room temperature and pressure. To be specific, ethanol. It is unsaturated. Unsaturated means something that has a double bond. So it's going to be an ethene over here, option A. It is 21% of clean dry air. Dry air के अंदर 78% तो nitrogen हो गया. 21% आपके पास oxygen होता है, which is your option number H. ठीक है. It is a reactant in Haber's process. Haber's process में कौन कौन से reactants होते हैं? We have 1 mole of N2, which is reacting with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. So which of these is a reactant in a Haber's process? Nitrogen and hydrogen. So nitrogen हमें given है, so we can write option number G over here. Question number 2, aluminium is manufactured by the electrolysis of aluminium oxide. Aluminium oxide का हमने electrolysis करना है, Al2O3. What is the name of the main ore of aluminium? It is known as bauxite. Name the substance mixed with aluminium oxide to reduce the operating temperature of the process. तो cryolite एक चीज होती है, note it down, very important question. Cryolite is a substance that we add to reduce the operating temperature and also इसका जो काम होता है ना basically melting point जो होता है ना उसको reduce कर देता है आके उस mixture का जो भी mixture बन रहा होता है during electrolysis of aluminium oxide. Why the molten mixture conducts electricity? Because it has mobile electrons. Because it has mobile electrons. Table 2.1 contains some information about the processes which take place at the anode and at the cathode. Anode के ऊपर what is happening? Anode is a positive electrode, वहां पे anions चले गए हैं, तो cathode के ऊपर cations जाएंगे. कौन से? Aluminium 3 plus will be attracted to the cathode, क्योंकि cathode आपके पास negative electrode है. अब एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगी. एल्यूमिनियम ने ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, तो उसको हम 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वापस दे देंगे. ये लो, रिडक्शन हो जाएगी एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम वंस अगेन. और यहाँ पे बैलेंस करने क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा. So we have written down the number of electrons as well, and we have written down the half equation of the reaction at the cathode as well. State why the process at the anode is oxidation, because electrons are lost. That is why we call it oxidation. और अगर आपसे पूछें why is the reduction
at the cathode known as reduction because electrons are gained. So oxygen is basically formed at the anode, and why the main gas given off the anode is carbon dioxide and not oxygen. वो कह रहे हैं why the main gas given off at the anode is carbon dioxide and not oxygen. Very good option. बहुत अच्छे सवाल है. ठीक है. Now the thing is कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड है वो बना हुआ है कार्बन का. ठीक है. जो आपके पास इलेक्ट्रोड दैट इज मेड ऑफ कार्बन. अब जैसे ही उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है. ठीक है. जब हम बात करते हैं कि कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं टू मेक इलेक्ट्रोड, उसके अंदर प्लैटिनम भी आता है. ठीक है. पेरेडियम भी आ गया, कॉपर इलेक्ट्रोड भी आ गया, और ये ग्रेफाइट की. अब ग्रेफाइट बेशक मटेरियल है बट इट इज रिएक्टिव. इट इज रिएक्टिव क्योंकि उसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. और वो कार्बन इलेक्ट्रोड जब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एट द एनोड, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन को हम कंबशन भी कहते हैं. सो कंबशन टेक्स प्लेस एट द एनोड. Why aluminium is used in food containers? Because it is non-corrosive. It is non-corrosive. Can someone tell me why is aluminium non-corrosive? सर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है। Good job. Aluminium reacts with fluorine to form an ionic compound aluminium fluoride. तो aluminium जो होता है वो होता है +3 और F होता है -1. मतलब कि इनका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, AlF3. तो यहाँ पे 3 ही है और इन सब के ऊपर क्या चार्ज है, -1 का. एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है. एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 283. बट आफ्टर इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, 28. सो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, हम उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देंगे और इसका थर्ड शेल अब एग्जिस्ट नहीं करता है. The third shell of aluminium doesn't exist. Whereas if we talk about the shells of fluorine, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. एवरी फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल बट वन ऑफ देम केम फ्रॉम एल्यूमिनियम. इधर भी इस फ्लोरीन के साथ भी क्या होगा, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स बट वन ऑफ देम केम फ्रॉम एल्यूमिनियम. ठीक है. एंड सेम इज द केस विद द थर्ड फ्लोरीन एज वेल. मैं बिल्कुल नीट नहीं बना रहा हूँ, काइंडली पेपर में जरा नीट सर्कल बना देना. Moving on, sulfur forms 2 chlorides. Chloride P has the formula S2Cl2. Chloride Q has the formula SClTl2. Both chlorides are covalently bonded and have low melting points. Suggest in terms of attraction between particles why these chlorides have low melting points. Simple answer. Because weak attraction between molecules. जब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक अट्रैक्शन होगी, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी between molecules, then that means what? That less energy will be required. Less energy will be required to overcome the forces of attraction. Less energy will be required to overcome the force of attraction. Chloride P जो H2Cl2 it forms when sulfur reacts with chlorine. तो लिख लेते हैं, sulfur reacts with chlorine to form what? H2Cl2. H2Cl2 बैलेंस कर लें इक्वेशन को. Complete the dot and cross diagram over here as well. अब जो सल्फर है, सल्फर इज इन ग्रुप नंबर 6. तो इट हैज 6 outermost इलेक्ट्रॉन्स और जो 5th और 6th इलेक्ट्रॉन्स इन दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड विथ क्लोरीन. और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू शो द डायग्राम ओवर हेयर लाइक दिस. ठीक है. Chloride P is converted to chloride Q by the reaction with chlorine in a closed system. The forward reaction is exothermic. The forward reaction is exothermic, meaning the backward reaction will be endothermic. Suggest 2 changes to the conditions which will result in a decrease in the concentration of chloride Q. अगर हमने chloride Q की concentration कम करनी है, कम कैसे करेंगे, जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड कैन समवन टेल मी हम यहाँ पे लेफ्ट पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कैसे करेंगे? क्या है डिफरेंट चेंजेस जो यू कैन मेक, क्योंकि हमने क्यू की कंसंट्रेशन कम करनी है.
क्यू की कॉन्सेंट्रेशन तभी कम होगी जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा. व्हाट आर द टू वेज इन विच अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल यू कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट हैंड साइड? क्विकली टेल मी. सर डिक्रीज द टेम्परेचर. डिक्रीज द टेम्परेचर करेंगे तो फॉरवर्ड नहीं जाएगा. फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक को तो टेम्परेचर डिक्रीज फेवर करता है ना. हमने क्या टेम्परेचर डिक्रीज किया, वो तो फॉरवर्ड चल जाएगा. हमने तो पी ज्यादा बनाना है ना, क्यू कम करना है, हमने क्यू नहीं बनाना. उसने कहा है व्हाट आर द चेंजेस इन कंडीशन विच विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड क्यू. वी डोंट नीड क्यू, हमने लेफ्ट पे शिफ्ट करवाना है. लेफ्ट पे कैसे शिफ्ट करवाओगे? बताएं. सर फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे फिर. हाँ ना, सिंपल. टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा? सर तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा. क्यों जाएगा? सर वो एंडोथर्मिक को फेवर करेगा फिर. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो एग्जामिनर ने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा, बस उलट पूछ लिया इस दफा. थोड़ा सा ट्रिक किया उसने. वरना वो अमूमन नहीं पूछते कि इक्विलिब्रियम आगे की तरफ कैसे शिफ्ट होगा. आज वो चाह ही नहीं रहा कि उसका प्रोडक्ट बने. आज एग्जामिनर चाह रहे हैं कि उसके रिएक्टेंट्स ही ज्यादा बनते रहे. और दूसरा तरीका क्या होगा वो भी बताएं. प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज लाना है. कम ऑन, क्विकली आंसर. सर प्रेशर को डिक्रीज कर देना. क्यों? लेफ्ट साइड पे कितने मोल्स हैं? सर या तो नंबर ऑफ मोल्स को आप डिक्रीज कर दें ताकि वो. नहीं, मोल्स कभी चेंज नहीं होते Le Chatelier's प्रिंसिपल में. कहाँ पढ़ लिया भाई? सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी ऑल्टर्ड. अब लेफ्ट साइड भी 2 मोल्स है, राइट साइड भी आप देखो तो 2 मोल्स हैं. प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. और सर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा. यस, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो, क्योंकि फिर रिएक्टेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी कि उनके क्यों आपने कम कर दिए. और इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा? खुद ब खुद लेफ्ट पे आ जाएगा उनकी हेल्प करने. समझ आ गई? यस सर. गुड जॉब. अगर इधर आपको ये रिवाइज करना चाहिए. Le Chatelier's प्रिंसिपल 3 दिन रह गए पेपर में. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. नहीं नहीं सर समझ आ गई. ओके. The rate of forward reaction is determined by collision theory. The rate of reaction depends upon two factors: the frequency of collision between particles and the proportion of collisions which have energy greater than or equal to the activation energy. Define the term activation energy. क्या है डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी की? सर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप रिएक्शन. Minimum energy to start a reaction. Good job. And what is the symbol for activation energy? E. ई है. Complete table 3.1 to show the effect, if any, when the conditions are changed. Change to conditions. आपने concentration of chlorine बढ़ा दी है. Concentration of chlorine आपने increase कर दिया, तो जो collisions हैं, will they increase? Yes. Temperature भी बढ़ा दिया, तब भी क्या collisions increase करेंगे? Yes. ठीक है. अच्छा, कैटलिस्ट का बताना ही नहीं है? बताना होगा. नहीं. ओके. Effect on the proportion of collisions which have reaction greater than or equal to the activation energy. बताएं. मतलब कि आसान अल्फाज में, क्या सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ेंगे? यस सर. जी सर. इस चीज से, कैटलिस्ट से तो बढ़ेंगे. व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन? टेम्परेचर से भी बढ़ते हैं. हम्म. कंसंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन से नो चेंज. क्यों? बेशक कॉन्सेंट्रेशन से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बढ़ रही है. ठीक है. आप यही करो कि देखो, 5 लोग थे जिनके पास स्किल्स थे. ठीक है. काम स्लो हो रहा था. ओके. आप लोग ज्यादा ले आए हो. कितने ले आए हो? आप 10 लोग ले आए हो. काम तेज हो गया.
लेकिन क्या काम सही हो रहा है? आप वही अनस्किल्ड लोग पहले भी थे, अब वही अनस्किल्ड लोग ज्यादा हो गए हैं। बेशक काम तेज हो रहा है, लेकिन क्या आपका काम सही हो रहा है? हाउ डू यू नो दैट? समझ आई? जी सर। The reaction of chloride P with chlorine is a redox reaction. The oxidation number of Cl in chloride P and chloride Q is -1. Use the oxidation numbers to explain why sulfur is oxidized in the forward reaction. Sulfur जो है, दोनों जगहों पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन तो यहाँ पे 0 है, यहाँ जाके क्या हो गया? -1। और वो कह रहे हैं क्लोरीन ऑक्सीडाइज क्यों इन द रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड में तो वो रिड्यूस हुआ है, फॉरवर्ड में तो सल्फर रिड्यूस, वो क्लोरीन रिड्यूस हो गया ना। लेकिन हम इसको पहले ना यहाँ लिख लेते हैं, H2Cl2 प्लस Cl2 फॉर्म्स SCl2। ठीक हो गया? ओके। अब दोनों जगहों पे पहले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सल्फर को ले लो x, कितने सल्फर है यहाँ पे? H2Cl2 में 2 सल्फर है, 2x प्लस 2 क्लोरीन है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू, ये +2 -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? यस सर। यहाँ पे अब सल्फर कितना है? एक ऐसा है SCl2 में, x प्लस 2 इंटू -1, क्योंकि 2 क्लोरीन है और ओवरऑल 0 है। तो x -2 इज इक्वल टू 0। अब x क्या है? +2। तो सल्फर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इंक्रीजेस फ्रॉम +1 टू +2। आप बोल दो कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीजेस, लूजेस वन मोर इलेक्ट्रॉन। फिर वो कह रहे हैं क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है रिवर्स रिएक्शन में। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है? -1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 0। तो आप बोलो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही है फ्रॉम -1 टू 0, सॉरी इंक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीजेस, तो क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन रिवर्स रिएक्शन में। वो क्या आ रहा है? -1 से 0। क्लियर? तो सल्फर इज यस सर। ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिवर्स रिएक्शन। जस्ट अ सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तब तक। राइट, आई एम बैक, लेट्स स्टार्ट। Silver bromide AgBr is made when aqueous silver ethanoate is added to aqueous sodium bromide. The equation for the reaction is shown in equation 1. This method includes all these steps. Add इतना मोल per dm क्यूब CH3CO Ag to a beaker. Volume में इतने Ag ions हैं, 50 centimeter cube of NaBr. Volume में इतने Br ions हैं. Filter the mixture, dry the solid residue, record the mass of dry residue, complete the ionic equation. तो ions आपके पास क्या होते हैं? Aqueous और silver bromide solid. Name a different aqueous silver salt which could be used in step 1. कोई भी और aqueous silver salt लेकिन वो soluble हो। सल्फर नाइट्रेट। Silver nitrate. Use the information in step 2 to calculate the concentration of NaBr. डाटा किसका दिया हुआ है? हमें Ag के मोल्स दिए हुए हैं ना। ठीक है, हम्म, हाँ ठीक है, मोल्स ऑफ AgBr जो है, मोल्स ऑफ AgBr आर 0.01। ठीक है, और हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो दोनों के अगर 0.01 है, वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना डाला था ऊपर? 50, बल्कि ये दिया हुआ है ना अलग से, 50 ये है, 0.01 ये है, बट 50 को DM क्यूब में करना है ना।
पहले तो मैं Ag क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। 50 को dm क्यूब में करेंगे तो 50/1000, ठीक है, इज इक्वल टू 0.2 मोल पर dm क्यूब। स्टेट द कलर ऑफ द precipitate which forms in step 2। ब्रोमीन था ना, क्रीम precipitate। क्लोराइड होगा तो वाइट, आयोडाइड होगा तो येलो। यूज द इंफॉर्मेशन इन स्टेप 1 and 2 इक्वेशन 1 टू determine the number of moles of AgBr formed। अच्छा, Ag प्लस साइंस और AgBr में 1:1 है ना, तो AgBr के मोल्स भी जो हैं वो 0.01 ही होंगे। जो AgBr के मोल्स हैं वो क्या होंगे, 0.01। AgBr का MR निकाल लो तो वो 188 आ जाता है। तो हम मैथ्स भी निकाल लेंगे इस तरह, कैसे, 0.01 इंटू 188 करोगे तो कैन समवन टेल मी द आंसर, 1.88 आ जाएगा ना। और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे उसके, सेम 0.01। नेम द सॉल्ट डिजॉल्व इन द फिल्ट्रेट इन स्टेप नंबर 3। क्या नाम है इस सॉल्ट का, CH3COO, दो कार्बन है तो इथेनोएट और सिल्वर है, सिल्वर इथेनोएट, सिल्वर इथेनोएट। The recorded mass of the dry residue in step 5 is greater than the mass calculated in E because the step is missing from the procedure। क्या स्टेप मिसिंग है स्टेप 5 में? Dry the solid until all the water is removed। Record the mass of the dry residue। Record the mass। आपने वाटर जब सारा evaporate कर दिया है, then you did not rinse it with distilled water। क्रिस्टलाइजेशन में यू डिड नॉट रिंस इट विद डिस्टिल्ड वाटर, तो वो आपके पास यहाँ मिसिंग स्टेप आ जाएगा। नेम द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर मास ऑफ ड्राई रेजिड्यू। ये ड्राई रेजिड्यू क्या है, बेसिकली दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट, सॉलिड सोडियम इथेनोएट, जो आपने यहाँ पे डिसॉल्व किया था इन द बीकर। दे आर बेसिकली, मैंने कहा ना अभी, दिस इज और क्रिस्टलाइजेशन। सो ये आपके पास क्रिस्टल्स हैं ऑफ द सॉल्ट, कौन सा, सिल्वर इथेनोएट, नहीं सॉरी, ड्राई रेजिड्यू। अब आपने NaBr डाल दिया ना, तो Na आपके पास क्या डिस्प्लेस कर देगा Ag को, टेल मी। जी सर। 10, यस सर। क्यों कर देगा? सर ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्रिस्टल सोडियम इथेनोएट के होंगे। बेरियम सल्फेट कैन बी मेड बाय द सेम मेथड बट डिफरेंट aqua solutions। सजेस्ट द टू aqua solutions। ऐसा aqua solution बताओ जो दोनों आपके पास सॉल्युबल हो, जिसमें एक बेरियम भी मिल जाए और एक हमें सल्फेट मिल, बेरियम मिल जाएगा हमें बेरियम क्लोराइड से। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl PbCl। सल्फेट कहाँ से मिलेगा, कोई भी ग्रुप 1 का सल्फेट ले लो, सारे ग्रुप 1 वाले सॉल्युबल होते थे, K2SO4। राइट द बैलेंस इक्वेशन, BaCl2 प्लस K2SO4 फॉर्म्स, हमें बेरियम सल्फेट चाहिए, BaSO4 प्लस KCl। बी ए बैलेंस है, Cl लेफ्ट पे दो है, राइट पे दो चाहिए हैं, SO4 इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट अ सेकंड। Alkenes are manufactured by cracking larger alkane molecules। State the source of the large alkane molecules used in cracking. Petroleum। State two conditions needed for cracking large alkane molecules: high temperature and catalyst। When one molecule of alkane is cracked, three molecules of butene and one other product are formed। पहले तो आप 3 butene बनाओ। 3 butene क्या होंगे, C4H8, ये 3 हो गए। तो 3 4 जार क्या होता है, 12, एंड 3 8 जार क्या होता है, 24 होता है ना। तो हमारे पास पीछे दो हाइड्रो कार्बन तो पूरे हो गए, यहाँ से 12 इधर थे, 12 इधर भी हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 26 है, यहाँ से 3 8 जार 24, दो हाइड्रोजन रहते हैं तो H2 फॉर्म हो जाएगा साथ। सजेस्ट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच हैपन्स ड्यूरिंग क्रैकिंग। जब एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हों, वी कॉल इट थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल क्रैकिंग एज वेल।
बट टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है तो टाइप ऑफ रिएक्शन दो होते हैं, देखो मेन। एक होता है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन क्या होते हैं, जब आपके पास ज्यादातर रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, वो एडिशन होगा। और डीकम्पोजिशन होता है जब एक रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। Propene will undergo polymerization, such as the name of the polymer formed from propene. Such as the name of the polymer formed from propene, polypropene, polypropene। अब इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे, पहले तो वो दो कार्बन ले लो प्रोपीन के जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, और तीसरा कार्बन आप ऐसे एज अ चेन ज्वाइन कर देना, ये होगा ना। लेकिन हमने इसके तीन रिपीट यूनिट दिखाने हैं, तो ब्रेक द डबल बॉन्ड ओवर है, और आप प्रोपीन के तीन रिपीट यूनिट्स यहाँ पे बना दो। So can someone tell me what type of polymerization is this? Condensation polymerization. कौन सी? Condensation polymerization. Okay, will someone else like to answer as well? Um, Sir, addition or polymerization Yes. के Why तीन addition? के एक प्रोडक्ट बन रहा है। Exactly. एक ही प्रोडक्ट बन रहा है पॉलीप्रोपीन, और प्लस डबल बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। ठीक है जी, आगे हैदर, कंडेंसेशन कैसे है ये? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो तब होती है जब वाटर इज रिलीज्ड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जो हम यूज करते हैं, कार्बोक्सिल में से ओ एच निकालोगे, अल्कोहल में से एच रिमूव करोगे, वाटर रिमूव होता है, तब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है ना। सो ये वाली जो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी मैं आखिरी दफा बता रहा हूँ ये, ठीक है, जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जब वाटर रिमूव हो रहा है टू मेक अ बॉन्ड, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Polyamides and polyesters are polymers. Polyamides can occur naturally or can be manufactured. Part of the structure of a polyamide is shown over here. Draw the circle around one amide linkage. Amide linkage में एक कार्बोक्सिलिक और एक amide ग्रुप इस तरह करके आ जाता है। तो कौन से दो मोनोमर्स नीडेड होंगे टू मेक दिस पॉलीएमाइड? आपको चाहिए होगा एक डाई कार्बोक्सिलिक और एक डायमाइन। ये मुझे पॉलीमर से देख के पता लग गया। तो आपके पास जो पहला वाला था, ये डार्क ग्रे वाला, ये क्या होगा? ये था डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक। और दूसरा आपके पास क्या था? डायमाइन। नेम द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस पॉलीमराइजेशन। अब बताएं आगा हैदर, इज दिस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन? Sir, addition है। एडिशन कैसे है? Sir, water तो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनेगा? जब आप एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉन्ड करोगे एक एमाइन के साथ, तो ये वाला ओ एच रिमूव होगा, ये एच रिमूव होगा, और डायरेक्टली इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना, जिसको हम एमाइड लिंकेज का नाम दे रहे हैं। Yes, sir. वाटर एलिमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर, वो OH और H वो अगर वहां से निकाल दें तो फिर वो वाटर बन जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर क्या होता है? कंडेंसेशन। सो व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट फॉर्म देन दिस पॉलीमराइजेशन? वाटर। यहाँ से भी हिंट मिल गया कि एक अदर प्रोडक्ट बन रहा है। एडिशन में तो कोई अदर प्रोडक्ट नहीं बनता। एडिशन में बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय डबल बॉन्ड ब्रेकिंग। कंडेंसेशन में कैसे बनते हैं? बाय रिमूविंग वाटर। सो स्टेट द नेम गिवन टू नेचुरल पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स जो नेचुरल होते हैं हमारी बॉडी में भी हैं, प्रोटीन्स। और ये किससे मिलके बनते हैं? एमाइनो एसिड से। इनके मोनोमर्स जो हैं, दे आर एमाइनो एसिड्स। One of the monomers which forms parts of the natural polymer has three carbon atoms. ठीक है, वो एक ऐसा है जिसपे थ्री कार्बन एटम्स हैं एज वेल। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ थ्री कार्बन एटम्स एंड देन शो द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ दिस मोनो। वो कह रहे हैं वन ऑफ द मोनोमर्स व्हिच फॉर्म्स इन पार्ट ऑफ नेचुरल पॉलीमराइड हैज टोटल ऑफ थ्री कार्बन्स। तो पहले तो आप थ्री कार्बन्स बनाओ। ठीक है,
और प्लस पॉलीएमाइड बना रहे हैं, मतलब कि एक कार्बन के साथ आपके पास COOH भी होगा, और उसी एक कार्बन की दूसरी साइड पे क्या होगा, NH2 ग्रुप। गॉट इट? यस सर। PET इज अ पॉलिएस्टर। नेम द टू टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर्स को दो चीजें मिलकर बनाती है, मैंने उस दिन क्लास में बताया था। पॉलीएमाइड्स बनते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायॉल्स और डायएमाइन से। ठीक है, पॉलीएमाइड्स किससे बनेंगे, डाई कार्बोक्सिलेट और डायएमाइन। पॉलीएस्टर्स कैसे बनेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डायऑल्स से मिलके। ठीक है, क्योंकि एक एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो पॉलीएस्टर कैसे बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक और डाई अल्कोहल्स, मतलब कि डायऑल से। ड्रॉ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पीटी विच शोज टू रिपीट यूनिट्स। ठीक है, तो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे शो होगा, इसको शेड कर देते हैं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, मैं आपको यहाँ पे पूरी पॉलीमराइजेशन करके दिखा देता हूँ, ताकि आगे हैदर आपको क्लियर भी हो जाए। साथ हम एक डायऑल भी शो कर देते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान कैसे होगी कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। OH विल बी रिमूव फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक, और हमेशा H रिमूव होता है फ्रॉम द अल्कोहल, तो यहाँ से वाटर विल बी रिमूव ना। तो अब हम दो रिपीट यूनिट शो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अब हो जाएगा, नाउ लुक हाउ एम आई मेकिंग द रिपीट यूनिट्स ओवर हेयर। यहाँ से भी आपके पास OH रिमूव करना है, और हमने यहाँ से भी H को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, इस वाले को शेड कर दो। अब ये वाला जो कार्बन है, ये डायरेक्टली, ये वाला कार्बन अब किससे बॉन्ड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से। फिर आगे एक और ऐसा ही बना होगा। इज इट नाउ क्लियर? यस सर। अब ये मिस्टेक ना हो, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ। ठीक है, अब याद रख लें, दिस इज हाउ वी मेक द TU repeat units, and this is the end of your today's paper as well.